Hello student, my name is Hemant Rana and welcome to my channel named Educational Buddha, and today we will discuss the chapter number 8. The chapter name is Who is Heavier of NCERT textbook of class 3rd Mathematics, and this video is useful for all CBSE's board school like KVS, and this is the part first of this chapter and in this part we will discuss page number 113 to 115. So let us start a chapter number 8, who is heavier. Page number 113, gur, jaggery and groundnuts. The topic is given on page number 113 is jaggery and groundnuts. You can see here this is jaggery. Jaggery means gur and groundnuts. Groundnut that means mungfali. Shabnam loved to eat jaggery and groundnuts. One day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. Shabnam bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. Same amount of groundnuts and jaggery she bought. And also you know that kilogram is also written as kg. 1 kg that means 1 kilogram. हमने ऑलरेडी पता है कि किलोग्राम को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम उसको केजी लिख सकते हैं एंड वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. Here you can see in this picture Shabnam have two sacks. In first sack you can see groundnuts written on the sack, and on the second sack you can read gur written. यहाँ पे गुड़ लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं groundnuts लिखा हुआ है. And you can see easily the sack of groundnuts look bigger than the sack of jaggery. जैगरी के सैक से जो ग्राउंडनट्स का सैक है वो बड़ा दिख रहा है. सो शबनम थॉट, oh, the groundnuts look so much more than the jaggery. Though Shabnam bought 1 kilogram of jaggery and 1 kilogram of groundnuts. दोनों ही 1 किलोग्राम खरीदे हैं, बावजूद उसके भी उसको लगता है कि ग्राउंडनट्स ज़्यादा है एंड जैगरी है वो कम है. So this is the question for you. Are the groundnuts really more than the jaggery in weight or do they just look more? क्या ग्राउंडनट सही में जैगरी से ज़्यादा है वेट में या सिर्फ हमें वैसा लग रहा है? So answer is no. The groundnuts do not weigh more than jaggery. Both of them are equal in weight, that is 1 kilogram. ना ग्राउंडनट्स ज़्यादा है ना जैगरी ज़्यादा है. बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन वेट. ग्राउंडनट्स ऑफ 1 kg एंड जैगरी ऑल्सो 1 kg. दोनों ही 1 kg है. दे only look more in numbers as compared to jaggery. Jaggery are more in number as compared to jaggery, and also groundnuts are light than jaggery. जैगरी से वो नंबर में भी ज़्यादा है और अगर गुड़ की कंपेयर में मूंगफली को देखे, ग्राउंडनट्स को देखे तो वो हल्के होते हैं. दैट इज वाई the bag of groundnuts looks bigger than the bag of jaggery.
इसलिए जैगरी की बैग से हमें ग्राउंड नट्स की बैग बड़ी दिखाई दे रही है। Now guess for which of these you need a bigger bag. नीचे जो आपको दो चीज बताई जाएगी उसमें से किसके लिए आपको बड़ी बैग चाहिए। फर्स्ट 1 kg पॉपकॉर्न एंड 1 kg शुगर। अब किसके लिए बड़ी बैग चाहिए उसके लिए हम ये सोचेंगे कि इन दोनों में से हल्का कौन है, लाइट कौन है। जो वेट में लाइट होगा उसके लिए हमें बड़ी बैग चाहिए। दैट मीन्स हियर कंपैरिजन बिटवीन 1 kg पॉपकॉर्न एंड 1 kg शुगर। तो हमें ऑलरेडी यहां दिखाई दे रहा है कि पॉपकॉर्न इज लाइट इन वेट देन शुगर। शुगर से अगर पॉपकॉर्न का वेट कंपेयर किया जाए तो पॉपकॉर्न है वो हल्के लग रहे हैं। पॉपकॉर्न एंड शुगर, तो ऑफ कोर्स वी नीड अ बिगर बैग फॉर 1 kg पॉपकॉर्न। सेकेंड 1 kg peas and 1 kg potatoes. Here you can see easily the peas are light in weight compared to potatoes. पोटैटोज के कंपेयर में अगर पीस का वेट हमें मालूम करने के लिए बोला जाए तो हमें पीस का वेट हल्का दिखाई देगा। तो वी नीड अ बिगर बैग फॉर 1 kg पीस। पेज नंबर 114, pumpkin tomato panga, fighting between pumpkin and tomatoes. This is the playground where tomatoes come to play every day. Here you can see the playground where tomatoes come to play every day. They love playing on the seashore. One day, a big pumpkin comes and sits on the side of the seashore. When he does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls up. Here you can see seesaw easily. This is the seashore. The first side of the seashore, you can see here tomatoes are sitting. सब टमेटो यहाँ पे बैठ रहे हैं. But one day a big pumpkin comes and sit on the other side of the seashore. शीशो की दूसरी साइड पे आकर वो बैठ गए और जैसे ही वो बैठ गए टमेटोज क्या हो गए, वहां से ऊपर चले गए, लिफ्ट हो गए, अप हो गए और वो नीचे गिरने लगे। तो अब टमेटो ने क्या डिसाइड किया, टमेटो ने ये डिसाइड किया टू सिट ऑन द अदर साइड एंड लिफ्ट द पंपकिन अप। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम भी दूसरी साइड बैठ जाते हैं सो दैट द पंपकिन फॉल्स ऑफ, ताकि पंपकिन नीचे गिर जाए। The little tomatoes start climbing on the other side. 1, 2, 3, 4, 5, and so on to 25. The pumpkin is still sitting and laughing. The total small tomatoes are 25. Are sitting on the other side of the seashore. But the pumpkin is still sitting the opposite side and laughing at the small potatoes. वो अभी भी दूसरी साइड पे नीचे ही बैठा हुआ है, वो लिफ्ट नहीं हुआ है। उसके अपोजिट साइड में 25 स्मॉल पोटैटोज आकर बैठ गए, उसके बावजूद भी वो अप हो रहा नहीं है। That means the weight of one big pumpkin is more than the weight of 25 small tomatoes.
स्मॉल 25 टमेटोज का वेट जितना होगा उससे ज्यादा वेट वन बिग पंपकिन का है। 25 टमेटोज बैठ गए वहां पे, आप देख पा रहे हैं। सो द बिग टमेटोज डिसाइड टू हेल्प द लिटिल ones get down and make way for the fat ones. 1, 2, 3, 4 and so on 20. अब 20 तक के बिग फैट टमेटोज आ गए। अब जो बिग टमेटोज हैं वो ओनली 20 ही बैठे हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये स्मॉल टमेटोज हैं और ये बिग टमेटोज हैं। और टमेटो जैसे ही यहाँ पे बैठते हैं ओनली 20, वो बोल रहे हैं हुर्रे, दैट मीन्स दे कैन लिफ्ट द बिग पंपकिन अप। वो बड़े वाले पंपकिन को अप कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। या द पंपकिन इज अप इन द एयर, इट शाउट्स ब्रिंग मी डाउन प्लीज। जो बिग पंपकिन है वो शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे नीचे ले आओ, ब्रिंग मी डाउन प्लीज। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो छोटे टमेटोज थे वो 25 भी बैठ गए, फिर भी वो अप नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जो बिग टमेटोज हैं वो 20 बैठ गए तो अप हो गया। दैट मीन्स द वेट ऑफ 20 big tomatoes are more than the weight of one big pumpkin. ये pumpkin के वेट से 20 big tomatoes का वेट ज्यादा है। पेज नंबर 115, guess how many small tomatoes do you think could lift the pumpkin up? 10, 20 or 40? We have learned recently there are 25 small tomatoes. वहां पर 25 small tomatoes थे। They cannot lift the big pumpkin up. वो 25 होने के बावजूद भी बिग पंपकिन को लिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अगर इनको पंपकिन को लिफ्ट करना है तो मोर देन 25 ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो 3 है उसमें से जो मोर देन 25 है वो है 40 small tomatoes. That means कि 40 small tomatoes can lift the big pumpkin up. Guess how many big mangoes can balance the pumpkin? Not lift the pumpkin up but balance the pumpkin. Balance करेगा, that means कि दोनों का वेट एक हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने मैंगोज चाहिए? So answer is nearly 20 big mangoes can balance the pumpkin. तो यहाँ हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते कि कितने मैंगोज चाहिए, इसीलिए हमने आंसर में लिखा है कि नियरली 20 बिग मैंगोज। दैट मीन्स कि बिग मैंगो जो है वो 20 के आसपास चाहिए। दे कैन बैलेंस द pumpkin. Now guess how many pumpkin can balance you on the seesaw? Now guess, if you are sitting on the one side of the seesaw and other side you have to put the big pumpkin and you have to balance the seesaw. और आपको शीशो को बैलेंस करना है, एक साइड पे पंपकिन को रखना है, दूसरी साइड को आपको बैठना है। तो आप कितने पंपकिन को रखेंगे तो आपके वेट के इक्वल टू हो जाएगा? So 6 to 8 pumpkins can balance me on the seesaw. तो लगभग नियरली
6 से 8 पंपकिन चाहिए हमें बैलेंस करने के लिए। डू योरसेल्फ नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स who you think weigh almost the same as you, more than you and less than you। पेज नंबर 115 पे एक एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पे आपको खुद लिखना है। फर्स्ट, ऑलमोस्ट द सेम एज यू, आपके वेट के जितने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके नेम लिखने हैं। मोर देन यू, आपको लगता है कि इन बच्चों का वेट आपसे ज़्यादा है तो उनके नाम बी में लिखें। एंड नंबर सी, लेस देन यू, जिनका वेट आपसे कम है उनके नाम आप लेस देन यू में लिखें। डू योरसेल्फ हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। आपको आपका हाथ स्ट्रेट रखना है और उसके ऊपर आपको बुक्स रखना है। सो हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट, आप कितनी बुक्स रख पाते हैं आपके हाथ पे। जब तक आपका हाथ झुक नहीं जाता, आपका हाथ स्ट्रेट रहना चाहिए। हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, आपका आर्म स्ट्रेट ही रहना चाहिए, वो झुकना चाहिए नहीं। और कितनी बुक्स आप लिफ्ट कर पा सकते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है कि आई कैन लिफ्ट ओनली डैश बुक्स विथ माई हैंड कीपिंग माई आर्म स्ट्रेट। आपका हाथ है वो सीधा रखते हुए आप कितनी बुक्स रख पाते हैं, उसको आपको इस ब्लैंक में खाली जगह में लिखना है। This is the end of part first, chapter number 8, who is heavier. Thank you for watching. If you like this video, please subscribe my channel and like this video and do not forget to comment. And part second will be uploaded soon. Thank you very much for watching my